a great day. A day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के स्विट्जरलैंड में बराह रास्त बातचीत। ईरानी और अमरीकी वफूद पाकिस्तान और कतर के सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात के लिए आमने सामने बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। तारीख़ी मनाज़िर पूरी दुनिया ने देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान की आला सतह की बैठक को आलमी अमन और खुशहाली के लिए अजीम दिन करार दे दिया। मुस्बत बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमरीका ईरान के साथ ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात ख़ित्ते पूरी दुनिया की सलामती, आलमी मईशत के लिए अहम और तारीख़ी हैं। The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. That says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि अगर ईरान की क़यादत इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। हम सिफारतकारी के जरिए मशरिक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुज़ाकरात के आगाज़ पर कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की है और कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। आज बहरान के खात्मे जबकि अमन और तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन है। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल एक अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने अपने आप को एक बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी साबित किया है। I have a few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. I'd like to thank Vice President JD Vance for his very able leadership in leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास ऐसी दस्तावेज़ होगी जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ गुफ्तगू में कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। सदर ट्रंप की मुतब्बिराना क़यादत की मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, तमाम कोशिशों का मुश्तरका नतीजा खुशगवार मुलाकात की सूरत में निकला है। उम्मीद है आज की बातचीत के नतीजा खेज़ पेशरफ्त सामने आएगी।
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुज़ाकरात के लिए आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ आए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गले लगाकर ईरानी वजीर खारजा को खुशामदीद कहा। दोनों ने कुछ देर तक आपस में गुफ्तगू की। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के वफ़द से खुशगवार मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। ईरान की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची ने की। बातचीत में इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने खिते में और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। Are you about the Pakistani role, especially? Very good. We love Pakistan. Mr. Prime Minister, Vice President Jerry Vance. good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend, Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. my brother. अमरीकी नायब सदर JD वैंस का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर कहा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर पुरतपाक अंदाज में मिले, गले लगाया। वज़ीर आज़म से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। JD वैंस ने शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। गले लगाकर कहा, जो कुछ आपने किया उसका शुक्रिया। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने गर्मजोश अंदाज में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। स्टीव विटकॉफ ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सिस को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान के साथ ऐसा ना करने पर पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से उसे निशाना बनाएंगे। इससे पहले एक बयान में ट्रंप का कहना था कि आबनार हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं होंगे। टोल सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता भी करार दिया। कहा, मुआहिदा न होने की सूरत में अमरीका मशरिक़ वुस्ता के सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अपना हक नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, सबको आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर पर खुलकर तनकीद भी की। कहा, अमरीका के सदर ट्रंप कहते थे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे। वो कहते थे ईरान को ये हक नहीं, वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और कहा, ईरान को ये हक भी हासिल है और वो हक भी हासिल है। अब अमरीकी सदर ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। अमरीका तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। जंगबंदी ऐलान के बावजूद आज भी लबनान पर इसराइली हमले, 7 शहीद, शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सोर में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्द-ए-अमल में पासदाराने इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद हो गए। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अगली हिदायत तक किसी को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी बंदिश के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। इसराइल तनाज़ा बातचीत के पहले दिन ज़ेर गौर आना शेड्यूल्ड है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन के आज़म का इयादा किया।
जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा लबनान में मौजूद बता रहे हैं, मुसलसल इसराइली हमले लबनानी अवाम के हौसले क्यों ना तोड़ सके। लबनान में जंग के दौरान भी म्यूजिकल फेस्टिवल का एहतमाम क्यों हो रहा है। लबनान में पाकिस्तानी और भारतीय एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं और लबनान को जंग से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए लबनान के जंगज़दा इलाकों से हामिद मीर का खुसूसी शो आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि केयर स्टार्मर इमिग्रेशन और तवानाई के मामलात में बुरी तरह नाकाम रहे, वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ गया, पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टार्मर को मालूम हो चुका है कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 3000 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से जायद का बजट भी मंजूर। तालीम के लिए 192 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 19 अरब 54 करोड़ रुपए मंजूर। कौमी असम्बली ने अपने अखराजात के लिए 9 अरब 3 करोड़ रुपए जबकि सेनेट के लिए 3 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद के मुतालबात भी मंजूर कर लिए गए। काबीना सेक्रेटेरिएट के लिए 35 अरब 38 करोड़, वजारत इत्तलात के लिए 72 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता न करें, मुसल्लह अफवाज और आलातलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ आसम नज़ीर तार का ऐवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल ना हो, इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकरीर बंद कर दी जाती हैं, बेशक आप बाद में चलाएं लेकिन दिखाएं तो सही। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इन्हें कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, आप इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ समेत मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी की, आप उन्हें कह दें कि बदतमीजी ना करें और ना ही कोई मेहमान लाएं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की अपील। कौमी असम्बली में कहा उनकी हुकूमत ने मईशत का वो हाल किया था कि तरक्याती बजट मुमकिन नहीं रहा था। अब मुआशी आशारों में बहुत तेज़ी आई है और ये सफ़र जारी है। अगर आज आप यूथ से पूछें तो वो आपको मईशत की बेहतरी से मुतालिक बताएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पिछले 2 साल में रेवेन्यू तकरीबन दुगना हुआ, उम्मीद है अगले साल का टारगेट भी पूरा होगा। अदालतों के जरिए 1 साल में 450 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई, जो एक रिकॉर्ड है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन के बाद पहला असम्बली इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी GB असम्बली के मुताबिक पहले असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौजूदा अपोजिशन को अपोजिशन मानने से इनकार। कहा ये आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं, अपोजिशन के साथ मुस्बत तनकीद भी होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने बड़ी सिफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और सदर मुमलिकत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। आज ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर भी पेशरफ्त हो रही है।
बलूचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला का पार्लिमानी जमातों से इजहार तशक्कुर। असेंबली से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन फ्रेंडली नहीं बल्कि ज़ीरक ऑपोजिशन है, यहाँ बजट बॉक्स फाड़ने का कल्चर नहीं है। इख्तिलाफ राय मौसर अंदाज में रखा गया। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि बसों से उतारकर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया उन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला का CTD और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। अठारह साल से हुकूमत में बैठे हैं, आपसे K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध असेंबली में MQM के दानियाल अहमद की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कराची को 15,000 बसें चाहिए, आपने सिर्फ 2,000 बसें दी हैं। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 पिंक स्कूटियां दी हैं। सिंध में शहनशाहियत चल रही है। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 स्कूटीज दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के कासिम सोमरो ने कहा कि सिंध में सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन पर तवज्जो दी जा रही है। 2014 के बाद थरकोल की वजह से तरक्की का सफर शुरू हुआ। आज थरकोल से मुल्क में 3500 मेगावाट बिजली मिल रही है। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। वजारत मजहबी अमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई जा सकेगी। एक खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर के मुकर्ररा बैंक से कराई जा सकेगी। बरतानिया के वज़ीर हमीश फल्कनर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के बजट से मुतालिक भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में आवाम अब भी मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस किया है। पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहाँ अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम इक़साम के खाने पसंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह मुहर्रम उल हराम के बाइस सादगी से मनाई गई। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में कुरान ख़वानी की गई। थैलेसीमिया के मरीजों के कारकुनों की जानिब से खून के अतियात दिए गए। अतियात मुस्तहिक मरीजों तक पहुँचाए जाएंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। ये लोग किसी सबूत के बगैर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं। जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। PTI अरकान दबाव में हैं। PTI के मुंतखब नुमाइंदों को बाजी अलीमा को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि अपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि वो ठीक मैंडेट पर और बाकी सब जाली मैंडेट पर आए हैं। क्या PTI वालों को पेशावर की महरूमियाँ नजर आ रही हैं? वज़ीर आला ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर पंजाब के अवाम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में 10 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में करार दिया कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सेमन बरामद न होना इस मुकदमे के खात्मे का बाइस नहीं बनता। जुर्म के 3 दिन बाद FIR के इंदराज में ताखीर इस केस में शक का फायदा नहीं देती। मुजरिम का स्कूल गेट पर लड़ाई का दावा और झूठा फंसाने का इल्ज़ाम साबित न हो सका। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशानात और ज्यादती की तस्दीक हुई थी। शेखुपुरा के एक स्कूल में स्वीपर ने 10 साल की तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया था। $300 हुआ है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि 400 जहाँ था वहाँ ये 300 हुआ है, तो ये बेहतर है। अवाम के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। ये काफ़ी नहीं, जो जंग से पहले थी 265 रुपये वो काफ़ी थी, तो अभी वही होनी चाहिए। पेट्रोल अभी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा रिलैक्स मिला है, लेकिन अभी ये रिलैक्स नहीं है एक तरीके का ना। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तू। हैदराबाद और नवाबशाह के बस अड्डों पर किराया कम न होने पर मुसाफिर परेशान। सखर में महंगाई के सताए अवाम की दुहाई। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाने का मुतालबा। वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और शफकत को याद करने का दिन। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर गूगल का रूल भी बदल गया। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड। फादर्स डे की खूबसूरत पोस्ट शेयर की गई। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है।
और हैप्पी फादर्स डे। हर बाप जो अपने बच्चे का पहला सुपर हीरो होता है को फादर्स डे मुबारक हो। डोंकी किंग बनाने वाले जियो फिल्म्स और तिल्स्मान एनिमेशंस की आने वाली नई एनिमेटेड फिल्म इस पैगाम पर मबनी है जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। फिल्म में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में नजर आएंगे।